Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, we are going to discuss about the detailed concepts of straight line. What is the meaning of equation of a curve? What are the different forms of equation of straight lines? What are different applications? How to find equation of straight lines? We are going to discuss all this in this particular video. Topic is straight line. First of all, we should know what is the meaning of equation of a curve. Locus of a point. Locus of a point is the path described by a point under the given conditions. There is a variable point, there is a moving point, and a point will move under the given conditions, and we have to find the path followed by that point. If there is a point P, whose coordinates are x comma y, this is x-axis and this is y-axis, and the point P moves such that its distance from x-axis is always constant. It moves such that its distance from x-axis is always constant. Then what will be the path followed by this point? इसको इस तरह से मूव करो बच्चों कि इसकी x-axis is always constant रहे, जितनी अभी है उतनी रहनी है throughout the motion. So if I denote this distance of the point from x-axis as k units, and the point moves on this path, what is the path? What is the name of this path? The name of this path is a straight line. And this path followed by the point is called as locus of this point, which moves as that its distance from x-axis is always constant. Now you have to tell me the equation of this path, equation of this locus. Equation of the path means a mathematical condition which is true for all points on this path. अब बच्चों इस पाथ पर जो भी पॉइंट्स होंगे, एक ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन बताना है which is true for all points on this path. और वो मैथमेटिकल कंडीशन होती क्या है? ये जो मूविंग पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स मैंने वेरिएबल लिए ना x एंड y, इनके ही टर्म्स में एक रिलेशन होता है which will be true for all points on this path. और यहां पर कोई भी पॉइंट होगा, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? k. So equation of this path is y is equal to k. आप ये कह सकते हैं कि equation of a line parallel to x-axis, which is at a distance of k units from x-axis, is given as y is equal to k. Y is equal to k क्या है बच्चों? Equation of a line which is parallel to x-axis at a distance of k units. कभी भी अगर किसी एक लाइन का जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन पता करना है, तो आप क्या कहोगे? अगर हमें उस लाइन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता दी जाए, then we can find equation of that line. If this distance is k units, then the equation of this line will be y is equal to k. So you can write equation of a line. Write down this equation of a line parallel to x-axis, which is at a distance of k units from x-axis, is given as y is equal to k. x-axis के parallel line का equation पता चल गया, y is equal to k. What is k? Distance of that line from x-axis. If this distance is 0, ये k को आप 0 कर दो, तो ये लाइन क्या करेगी? x-axis से कोइंसाइड कर देगी.
तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? एक्स एक्सिस इज आल्सो लाइन. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, क्योंकि k क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो आप कह सकते हो इसका स्पेशल फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. मैंने आपको बताया ना इक्वेशन ऑफ अ कर्व का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ कर्व का मीनिंग होता है अ मैथमेटिकल कंडीशन which is true for all points on that path. तो y is equal to 0. x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो y is equal to 0 is the mathematical condition which is true for all points on x axis. So equation of x axis is what? Equation of x axis is y is equal to 0. So आपको समझना है लोकस का मीनिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व का मीनिंग क्या है. लोकस मींस path of a point, path described by a point under the given conditions. Some certain set of conditions will be given to you. Under those conditions the point will move on the space, on the plane. तो जो भी path होगा followed by that point under the given conditions, that path is called as locus of the point. And what is the equation of the path? वो जो मूविंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं के टर्म्स में एक मैथमेटिकल कंडीशन होगी. दैट कंडीशन विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दैट पाथ. उसी को क्या बोलते हो आप? इक्वेशन ऑफ द पाथ, इक्वेशन ऑफ द लोकस. लोकस टर्म आपको मैथमेटिक्स में बहुत मिलेगा. पूरी ये सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये इनिशियली आपको यही समझना होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ अ कर्व, what is the meaning of locus of a point. और अभी हम लोग जो इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं that is a specially straight line. तो स्ट्रेट लाइन का मैंने एक स्पेशल केस अभी डिस्कस किया. If a line is parallel to x axis, then what is the equation of this line? Y is equal to k units. What is k? K is the distance of that line from x axis. और x अगर ये k 0 हो जाए तो वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी? x axis हो जाएगी. What is the equation of x axis? Y is equal to 0. अब आप इसका दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे. If a line is parallel to y axis, देखो ये एक पॉइंट है, this is a moving point जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लिया है. This is x axis and this is y axis, and there is this point moves such that its distance from y axis is always constant. इसको इस तरह से मूव कराओ कि इसकी जो y एक्सिस से डिस्टेंस अभी जितनी है, अभी मैंने कहा ये लैम्डा यूनिट्स, तो इसको लैम्डा ही रखना है, लैम्डा यूनिट्स ही रखना है. तो जो पाथ फॉलोड बाय दिस पॉइंट होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. और अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और इसकी जो है y एक्सिस से डिस्टेंस लैम्डा यूनिट है, तो कोई भी पॉइंट इस पाथ पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? X coordinate will be equal to lambda. So equation of this line is equation of a line parallel to y axis is given as x is equal to lambda. What is lambda? Where lambda is the distance of that line from y axis. If you have to find equation of a line parallel to y axis, तो आपको पूछना होगा इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम y एक्सिस. इफ दैट डिस्टेंस इज लैम्डा यूनिट्स तो उसका इक्वेशन क्या लिखोगे आप? x इज इक्वल टू लैम्डा. ओके, तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन पता करना है, देन you need to know the distance of that line from y axis, and if this distance we could find as lambda units, then its equation will be x is equal to lambda. अगर lambda 0 हो जाए तो ये लाइन क्या हो जाएगी? y एक्सिस. सो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो गया? यहां से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इट इज आल्सो लाइन, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. ये स्पेशल केस हो गया इसी का. x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. Before discussing some other forms of equation of a straight line, हम लोग समझ लेते हैं what is the meaning of
स्लोप ऑफ अ लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप का मीनिंग तो आपको बच्चों पता है। हम लोगों के पास अगर दो लाइंस हैं, ये एक लाइन ये है, ये L1 है, और एक लाइन और है L2 है। अगर मैं पूछता हूं आपसे विच लाइन हैज ग्रेटर स्लोप, L1 है और L2 है, तो आप डिफरेंट सिचुएशंस में अगर पता करना चाहते हो कि कौन सी लाइन का स्लोप ग्रेटर है, तो क्वालिटेटिवली बताओ हाउ मच इट इज ग्रेटर। अभी ये नहीं बताना है इट इज ग्रेटर और स्मॉलर, सिर्फ ये बताना। तो आप क्या करते हो, एंगल मेड बाय दैट लाइन विद एक्स एक्सिस, ये पता करो। ये इसका एंगल ये है और दूसरी वाली लाइन का एंगल ये। विच वन इज ग्रेटर? एंगल मेड बाय द लाइन L2 from the positive direction of x axis in anti-clockwise direction, L2 का greater है as compared to L1. So we say that slope of L2 is greater than slope of L1. Qualitatively तो बता दिया which one has the greater slope, how much it is greater. So एक quantity है जिससे हम लोग इसको denote करेंगे. If a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, then its slope is defined as tan theta and it is denoted as small m. तो अगर कोई लाइन है, if there is a line which में, अच्छा पॉजिटिव, ध्यान देना इसमें वर्ड्स जो मैंने बोले हैं क्लियरली समझ लेना उनको। एंगल मेड बाय दैट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो एंगल थीटा है, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज डिनोटेड एज m एंड इट इज गिवन एज tan थीटा। तो ध्यान देना है कौन सा एंगल चाहिए, एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो थीटा है तो उसका स्लोप कितना होता है tan थीटा, और स्मॉल m से हम लोग डिनोट करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका स्लोप हो गया tan थीटा। अब आपको ये दिया जाए if the two lines are parallel to each other, then what will be the relation between the slopes? अगर if two lines are parallel, जैसे देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, L1 and L2, they are parallel, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से दोनों का एंगल सेम होगा, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, स्लोप्स विल बी इक्वल। तो आपको क्या बोलना है, m1 से डिनोट करो L1 के स्लोप को और L2 के स्लोप को m2 से। if the two lines are parallel to each other, then their slopes are equal, m1 is equal to m2, then their slopes are equal. अब देखना है if the two lines are perpendicular to each other, then what is the relation between the slopes of the two lines? एक लाइन कंसीडर किया बच्चों हमने, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड देयर इज अ लाइन, ये L1 है, एंगल मेड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस इज थीटा। जब कभी भी मैं एंगल की बात करूंगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है थीटा। तो इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया, m1 से डिनोट किया मैंने tan थीटा। Now let us consider a line which is perpendicular to this line, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाती हुई L2 लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है। What is the slope of this line? L2 का स्लोप चाहिए। किसी भी लाइन का अगर स्लोप पता करना है देन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पता करेंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया मैंने और एंटी क्लॉकवाइज, ये मुझे एंगल चाहिए, और इस एंगल को अगर मैंने अल्फा से डिनोट किया तो इसका जो स्लोप होगा m2 से डिनोट किया मैंने tan अल्फा। तो अल्फा और थीटा में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हुआ, तो आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। तो 90 प्लस थीटा होगा तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चों,
सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इफ थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस में आती है, नेगेटिव आती है। और 90 वाले केस में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, tan का cot हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस cot थीटा। और आप इसको लिख सकते हो -1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा क्या था, tan थीटा तो m1 था। तो इस तरीके से पता चल गया बच्चों, जो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आ गया -1 अपॉन m1। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत बार हम लोग यूज कर रहे होंगे। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, -1 अपॉन m1। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टू परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट, टू परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 एंड m2। अब आपको सोचना है, ये जो मैंने बताया अभी, टू परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर आल्सो टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो क्या इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा? आंसर इज नो। यहां पर ये रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। इसी के लिए फिर बाद में 3D में आपको स्लोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो 2D में अभी हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा और कोई भी सेट ऑफ लाइंस होंगी विच आर परपेंडिकुलर, तो उनके लिए दिस रिजल्ट विल बी ट्रू। तो अभी क्या बता दिया गया आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। उसके लिए एंगल पता होना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी लाइन का, तो फिर आप उसका स्लोप बताएंगे। अगर वो थीटा है तो स्लोप होगा tan थीटा। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल then their slopes will be equal. If the two lines are perpendicular then product of their slopes will be equal to -1. अब बच्चों एक और सिचुएशन है, अगर मैं आपको किसी लाइन पर दो पॉइंट दे दूं, पॉइंट देने का मतलब है उसके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, देन हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो हेडिंग डालिए, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, टू find the slope of a line passing through 2 points. 2 points, 2 पॉइंट दिए जाएंगे, एक लाइन पर 2 पॉइंट दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इस लाइन का स्लोप पता करो, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। There is a point A जिसके coordinates x1 y1, there is a point B जिसके coordinates x2 y2, and there is a line which passes through these 2 points and we have to find the slope of this line. Slope के लिए तो एंगल पता होना चाहिए, एंगल तो नहीं पता है। यहाँ पर इस लाइन पर 2 पॉइंट दिए गए, एक है x1 y1 और एक है x2 y2, और कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है। We have to find the slope of that line. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट का मीनिंग होता है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसकी जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है बच्चों, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये x1 और ये y। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये है m से डिनोट किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। अब if I denote angle made by this line from positive direction of x axis as theta, तो इसका स्लोप तो tan थीटा है, बट हमें थीटा तो दिया नहीं, थीटा इज नॉट गिवन टू अस। तो फिर क्या करेंगे, तो देखते हैं थीटा, अगर tan, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हों x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स लाइन पर दिए हों, तो क्या हम tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स पता कर सकते हैं? लेट अस सी। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस BM पर, तो आप बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस, दिस लेंथ? ये देखो x2 है पूरा, ये x1 है, तो ये क्या आएगा x2 माइनस x1। ये पूरा y2 है और इतना देखो y1 है, तो ये भी y1 हो गया, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई,
ये हो गई y2 minus y1. And in this triangle, in triangle APB, tan theta क्या आएगा बच्चों? tan theta आएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1. और tan theta क्या है? Slope of the line. So slope of the line comes out to be x2 minus y2 minus y1 upon x2 minus x1. आप इस फार्मूला को यूज करते हुए स्लोप ऑफ अ लाइन पता कर सकते हैं. तो क्या याद रखना है? इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, one point is x1 y1 and other is x2 y2, then slope of the line will be given as y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये याद रखना है. तो स्लोप के लिए एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस अगर पता है मुझे, ध्यान रखना फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो थीटा है तो m is equal to tan theta. If the two lines are parallel to each other, then their slopes are equal. If the two lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes will be equal to -1. If you are given 2 points on a line, तो उस लाइन का स्लोप होगा m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब स्पेशल केस जो आपके हैं, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, if a line is parallel to x axis, then what is its slope? If a line is parallel to x axis, then its slope क्या होगा? थीटा क्या लेंगे आप? 0 डिग्री. तो m is equal to क्या आएगा? tan 0. tan 0 क्या हो जाएगा? 0. So if a line is parallel to x axis, then its slope is equal to 0. ये नोट कर लेना है. If a line is parallel to x axis, then its slope is equal to 0. If a line is parallel to y axis, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा. और m is equal to tan थीटा होता है, 1 upon m क्या हो जाएगा? cot थीटा. तो cot 90 क्या हो जाएगा? 0. ध्यान रखना बच्चों, ये रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग. If a line is parallel to y axis, then 1 upon slope of the line will be equal to 0. दो रिजल्ट. If a line is parallel to x axis, m is equal to 0. If a line is parallel to y axis, then 1 upon m, 1 upon slope of the line will be equal to 0. In second video, I will be discussing the different forms of straight line. So revise this concept of